عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن کا اعلان۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست شائع کر دے گا۔ حلقہ بندیوں پر اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد 30 نومبر کو حتمی فہرست دی جائے گی۔ سیاسی رہنماؤں اور اہم شخصیات کے خلاف نیب کیسز کھل گئے۔ اسلام آباد اور کراچی کی احتساب عدالتوں میں گاڑیوں میں بھر کر ریکارڈ پہنچا دیا گیا۔ کراچی میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ڈاکٹر عاصم حسین، ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال، رؤوف صدیقی، سابق وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے خلاف ریفرنس واپس نیب کورٹ کو موصول۔ اسلام آباد کی عدالت میں نیب پروزیکیوٹر نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانا ہے۔ آج ہی کیسز کا ریکارڈ احتساب عدالت میں پیش کریں گے۔ جج محمد بشیر نے کہا، پرائیویٹ پبلک آفس ہولڈر سرکاری ملازمین کے کیسز کی نوعیت مختلف ہے۔ آپ بتائیں گے کون سا کیس سن سکتے ہیں اور کون سا دائرہ اختیار میں نہیں۔ نیب نے اہم عہدوں پر تقرریوں کے لیے ڈیپوٹیشن پر حساس اداروں سے افسران کی خدمات طلب کر لی۔ انٹیلیجنس افسران اور اہلکار نیب دفاتر میں فرائض سر انجام دیں گے۔ شہباز شریف نواز شریف کے لیے اہم پیغام لے کر لندن روانہ۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز لاہور سے لندن روانہ ہوئیں۔ شہباز شریف منگل کی صبح لندن سے پاکستان پہنچے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کی جمعے کو اہم ملاقات ہوگی، جس میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی کے حتمی پروگرام کے علاوہ الیکشن سے متعلق بھی اہم فیصلے متوقع ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے آغاز میں صرف ایک ہفتہ رہ گیا۔ پاکستان ٹیم کس کمبینیشن کے ساتھ میدان میں اترے گی، اب تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کپتان، چیف سلیکٹر اور ٹیم مینجمنٹ ایک پیج پر نہیں۔ گزشتہ روز ہونے والے اہم اجلاس میں چیف سلیکٹر انضمام الحق شریک نہیں ہوئے۔ بابر اعظم اور ڈائریکٹر کرکٹ مکی آتھر نے اجلاس میں تسلیم کیا کہ ایشیا کپ میں شکست ناقص حکمت عملی کے سبب ہوئی۔ مسلسل سفر کی تھکاوٹ، فٹنس مسائل اور سری لنکا کے موسم کا بھی ٹیم کی تیاریوں پر اثر پڑا۔ بابر اعظم اور مکی آتھر ٹیم میں زیادہ تبدیلیوں کے حامی نہیں۔ اجلاس میں بولنگ کوچ مورنی موکل نے ٹیم کے ساتھ سپن بولنگ کوچ رکھنے کا مشورہ دے دیا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کو پہلا وارم اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف حیدرآباد دکن میں کھیلنا ہے۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی رازق سنجرانی بتائیں وہ ٹائپ 1 رہائش کے کیسے اہل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا رازق سنجرانی کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس 22 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے کہا، 33-34 سال عمر کا شخص گریڈ 22 کا افسر کیسے ہو سکتا ہے؟ تاثر ہے کہ رازق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ کا بھائی ہونے کے بنا پر کیٹیگری 1 رہائش الاٹ ہونے کی رعایت ملی۔ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ چیئرمین سینٹ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے بھائی کو سہولت فراہم کریں گے۔ رازق سنجرانی کو بطور ایم ڈی سینڈک میٹلز لمیٹڈ بلوچستان 2019 سے 2046 تک کے لیے کیٹیگری 1 کی رہائش کا الاٹ ہوئی، جو گریڈ 21 اور 22 کے افسران کے لیے مختص ہے۔ رازق سنجرانی کیسے ٹائپ 1 رہائش کے مستحق ہیں؟ سیکرٹری وزارت ہاؤسنگ اس متعلق جواب نہ دے سکے۔ 1 ستمبر کو عدالت نے رازق سنجرانی کو فریق بنا کر نوٹس جاری کیا، مگر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کا الزام کی گونج ابھی کم نہ ہوئی تھی کہ کینیڈا میں خالصتان تحریک سے منسلک ایک اور سکھ کو قتل کر دیا گیا۔ سکھدل سنگھ نامی شخص کو کینیڈا کے علاقے وڈی پیگ میں 15 گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ سکھدل سنگھ 2017 میں بھارتی پنجاب سے کینیڈا آیا تھا۔ سکھدل سنگھ کے قتل کے فوراً بعد بھارت نے کینیڈا میں اپنی ویزا سروس بھی غیر معینہ مدت کے لیے روک دی۔ ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزام کے بعد بھارت میں کینیڈا کے کچھ سفارتکاروں کو دھمکیاں۔ دلی میں کینیڈا کے ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کو دھمکیاں سوشل میڈیا پر دی جا رہی ہیں۔ بھارت میں اپنے عملے کی تعداد کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے کینیڈا میں ہردیپ سنگھ کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کے الزام کے بعد سے دونوں ممالک میں سفارتی کشیدگی برقرار ہے۔ لوگوں کو قتل کرنے کا بھارتی ایجنڈا گلوبل ہو گیا۔ کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کے قتل سے بھارت ایکسپوز ہو گیا۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی امریکہ میں جیو نیوز سے گفتگو، کہا شائننگ انڈیا اور جمہوریت کے بھارتی دعوے بے نقاب ہو گئے۔ پہلے سب سمجھتے تھے کہ بھارت صرف پاکستان میں کراس بارڈر کلنگ میں ملوث ہے، اب بات آگے بڑھ گئی ہے۔ We are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan.
पाकिस्तान में गरीबों को रिलीफ, दौलतमंदों पर टैक्स लगाया जाए। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर की न्यूयॉर्क में निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा यही वो बात है जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा सरबरा IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही। वज़ीर-ए-आज़म की बिल गेट्स से भी मुलाकात हुई। बिल गेट्स का पोलियो वायरस की मुंतकिली रोकने और खैबर पख्तूनख्वा में वैक्सीनेशन मुहिम जारी रखने का आज़म। हुकूमती मिल्कियती इदारों के नुकसानात 500 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। हुकूमती इदारे खिदमात फराहम करने में नाकाम रहे। सरकारी कंपनीज के नुकसानात की बुनियादी वजह मेरिट के बगैर तैनातियां हैं। नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली है। हुकूमती मिल्कियती इदारों की तंजीमें नौ की जा रही है। निगरां वजीर खजाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमती कंपनीज के कानून के मुसव्विदा बना लिया है। नए कानून के तहत बोर्ड्स को आज़ाद और खुद मुख्तार बनाया जाएगा। बोर्ड्स में माहिरीन को रखा जाएगा और चेयरमैन भी मेरिट पर लगाए जाएंगे। इन कंपनीज को पेपरा कवानीन से इस्तिस्ना दिया जाएगा। रावलपिंडी में शेख रशीद अहमद की रिहाइशगाह लाल हवेली सील। मतरूका वक्फ इमलाक का सुबह सवेरे FIA और पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ऑपरेशन। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि शेख रशीद और उनके भाई मतरूका वक्फ इमलाक की प्रॉपर्टी पर गैर कानूनी काबिज हैं। लाल हवेली से मुतालिक कोई मुस्तनद दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। लाल हवेली को खाली कराने का फैसला चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने जारी किया। शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद शफीक का लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाजीसा ने वकील को अदालत का वक्त ज़ाय करने पर 5,000 रुपए जुर्माना कर दिया। कहा वकील ने मुतल्लिका दस्तावेजात दिखाने की बजाय अदालत का वक्त ज़ाय किया। वक्त ज़ाय करने पर आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना करना चाहिए। आपने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करवा के रसीद दें। दुकानों के किराए और जायदाद मुंतकिली के केस में वकील ने अदालत के बार बार पूछने पर कोई दस्तावेज पेश नहीं की थी। चेयरमैन PTI को वकला और अपने डॉक्टर आसिम यूसुफ से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने मुबैना ऑडियो लीक्स में FIA तहकीकात के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। FIA का 19 सितंबर को तलबी का नोटिस मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि AC अदालत में मरकजी केस 30 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। केस ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद FIA ने 19 सितंबर को तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। FIA ने अगर कार्रवाई जारी रखी तो इससे पिटिशनर के हुकूक मुतासिर होंगे। बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान 6 अरब रुपए वसूल कर लिए। आखिरी 7 दिन में 5 अरब रुपए वसूल किए गए। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा। कहा 1500 बिजली चोर गिरफ्तार हैं। बिजली चोरी कल्चर खत्म किए बगैर आराम से नहीं बैठेंगे। जुर्म करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को देने की इजाजत नहीं दे सकते। फैसलाबाद रीजन में 50 से जायद सरकारी इदारों ने 1 अरब 52 करोड़ से जायद के बिजली के बिल्स नहीं भरे। वासा ने 1 अरब 39 करोड़ 58 लाख से जायद। पंजाब पुलिस ने 2 करोड़ 10 लाख। महकमा जेल खाना जात ने 1 करोड़ 85 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए। जिला हुकूमत ने 1 करोड़ से जायद। रेलवेज ने 68 लाख 43 हज़ार। FIA ने 19 लाख 41 हज़ार रुपए के बिल जमा नहीं करवाए। महकमा तालीम के जिला दफ्तर 19 लाख। महकमा सेहत के जिम्मा 7 लाख 92 हज़ार रुपए के वाजिबात हैं। फेस्को ने बिल जमा करवाने के लिए हतमी नोटिस जारी किए हैं। निगरां वज़ीर दाखिला और IG सिंध की नौशेरो फेरोज में मकतूल फातिमा के घर आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। निगरां वज़ीर दाखिला ने कहा कि मजलूम खानदान के साथ हैं, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। बच्ची के वालिदैन ने SHO की शिकायत की। इसके अजाले के लिए अहकामात दे दिए हैं। फातिमा हलाकत केस के मरकजी मुलजिम असद शाह के ससुर फयाज शाह ने सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत हासिल कर ली। असद शाह की बीवी हिना शाह की दरख्वास्त पर फैसला 26 सितंबर तक महफूज कर लिया गया। PIA की निजकारी से पहले सिविल एविएशन को रेगुलेट करने के लिए इदारा बनाने का फैसला। नया इदारा पेमरा, ओगरा और नेपरा की तर्ज पर बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के ज़राए का कहना है कि रेगुलेटर PIA की निजकारी से पैदा होने वाले खला के बाद मामलात का जायजा लेगा, कार्टेल्स के क़याम को रोकेगा और कम मुनाफा बख्श रूट्स पर परवाज़ें चलाने को यकीनी बनाएगा। लोकल बॉडीज़ में गोश्त मुलाजमीन को फारिग किया जाए। कराची में मनशियात के आदी अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया जाए।
सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मदद से कराची में गदागरों के खिलाफ भी ऑपरेशन किया जाए। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखिर की हुक्काम को हिदायत। लोकल बॉडीज से मुतालिक इजलास में निगरां वज़ीर बल्दियात मुबीन जमानी का कहना था कि अहम शाहराहों चौरंगियों को दिलकश किया जा रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इजलास में बताया कि नए प्रोजेक्ट्स में निकासी आब का खास ख्याल रखा गया है। निगरां वज़ीर आला पंजाब का चीन में निंशिया जनरल अस्पताल का दौरा, अस्पताल में काम करने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, निंशिया अस्पताल का मैनेजमेंट सिस्टम लायक तहसीन और काबिल तकलीद है। पंजाब के अस्पतालों में भी तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का कहना है कि इलेक्शन जब भी हो जीतेगी पीपल्स पार्टी, प्रोपेगेंडा कितना भी हो सरप्राइज देगी पीपल्स पार्टी। कराची प्रेस क्लब में मीडिया टॉक करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के नज़रियात और तर्ज सियासत मुख्तलिफ हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं कहा कि पीर पगाड़ा से इत्तेहाद नहीं हो सकता। इंतखाबी इत्तेहाद किससे करना है ये इलेक्शन के वक्त तय करेंगे। पीपल्स पार्टी बदतरीन मुखालिफ के साथ बैठने को तैयार है। सबको मिलाकर बिठाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने का मतलब है कि हम चाहते हैं इंतखाबात आज़ाद और शफाफ हों। महकमे मौसमियात की 22 से 24 सितंबर तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। रावलपिंडी, लाहौर, कश्मीर, गिलगित, मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, लकी मरवत, बन्नू, करक, वज़ीरिस्तान में बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, कश्मीर, हज़ारा डिवीज़न में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आज सिंध की साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। कराची में आज कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को सालगिरह मुबारक। लाहौर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सालगिरह के मौके पर तकरीब, केक काटा गया, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। पीपल्स पार्टी के मीडिया सेल की जानिब से बिलावल भुट्टो की बतौर वजीर खारजा कामयाबियों से मुतल्लिक वीडियो भी जारी। न्यूयॉर्क में OIC के तहत जम्मू और कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने भारतीय मजालिम और नाइंसाफियों पर ब्रीफ किया। न्यूयॉर्क में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास भी हुआ। वजीर खारजा का आलमी तनाज़ात के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर। जलील अब्बास जिलानी ने अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी थॉमस वेस्ट और अरब लीग सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकातें की। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और अंशा का वलीमा आज शाम इस्लामाबाद में होगा। तकरीब में फैमिली और दोस्त और टीम के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी खातून को पैमान नायला कियानी ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। नेपाल में 8000 मीटर से बुलंद मुनासलो की चोटी सर कर ली। पाकिस्तानी को पैमा सरबाज अली ने मुनासलो का रियल समिट सर कर लिया। उन्होंने ये कारनामा मसनूई ऑक्सीजन के बगैर अंजाम दिया।